صبح خیر، السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ جے کے. ہم آپ سے براہ راست مخاطب ہیں دوردرشن سری کے اسٹوڈیوز سے. میں اظہر حاجنی ہوں، میرے ہمراہ ہیں حویرہ شفیع. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. آپ سلام دعا کریں، اس کے بعد ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کریں. جی تھینک یو سو مچ. السلام علیکم، خوش آمدید آپ سبھی کا آپ کے اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں ہی ہم آپ تک اہم اطلاعات پہنچاتے ہیں. سب سے پہلے آج دن کے حوالے سے بتانا چاہیں گے، آج دنیا بھر میں انٹرنیشنل ٹائیگر ڈے منایا جاتا ہے. اظہر، یہ دن بہت ہی زیادہ خاص ہے، اہمیت رکھتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے دیش کا جو نیشنل اینیمل ہے نا، دیٹ از obviously ٹائیگر، isn't it؟ تو ناظرین، آج کے دن یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم ٹائیگرز کو فردر کیسے کنزرو کر سکتے ہیں. True. آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں ٹائیگرز کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن ابھی اس میں کافی حد تک ڈکلائن آ گیا ہے، جس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم ڈیفارسٹیشن کی بات کریں، پیڑ کاٹنے کی وجہ سے جو ٹائیگرز ہیں ان کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ ختم ہو رہی ہے دن بدن. لیکن اگر اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں پچھلے کچھ سالوں سے جو ٹائیگرز کی تعداد ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. اینڈ بالکل، اینڈ کرنٹلی ناظرین وی آر ہیونگ about 3,628 tigers in India. And I think اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے پروجیکٹ ٹائیگر کو، جس کی شروعات 1973 1 اپریل سے انڈیا میں ہوئی تھی. جی انڈاؤٹڈلی. اور اس دن کو منانے کا آغاز سن 2010 سے ہوا تھا. اور ان ممالک میں جن ممالک میں چیتا پایا جاتا ہے، ٹائیگر پایا جاتا ہے، ان ممالک کے مابین یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم ٹائیگر کی جو چیتا کی تعداد ہے اس کو دوگنا کریں گے، اس کو بڑھائیں گے. اور اس حوالے سے جس طرح حمیرہ بھی کہہ رہی تھی کہ جتنے بھی ایفرٹس لیے گئے ان ایفرٹس کے کافی فائدے پہنچے، اور اس کا ثمر ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں اب ٹائیگرز پائے جاتے ہیں. اور رائل بنگال ٹائیگر جو کہ ہندوستان کا ٹائیگر ہے، اپنی خوبصورتی کے لیے اور اپنی کئی کوالٹیز کے لیے جانا جاتا ہے. خیر، جب ہم بات کرتے ہیں جنگلات میں پائی جانے والی حیات کی، اس طرف توجہ مبذول کرنے کی بے حد ضرورت ہے، اور جانوروں کے تئیں ایک محبت کا اظہار کرنا بے حد ضروری ہے. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں انکلکیٹ کریں وہ تمام عادات جس سے ہمارے بچے کانشیس ہو جائیں کہ یم زن یم نظبن یمن نظبن ہنچ پن حقوق تو اس پہ ذمہ داری عائد سپدان اس تھو یہد خیال یہ ہیکو تہند خطر کرت تہ پز اس کرن. حالانکہ اس وچان کن سات اخ انسان اخ جانور بنان. اخ واقعہ پیش کی کال برو اکس جانورس آئی زنگ ژٹن. زندہ جانور تم اکس جائے فصلس کتھان نقصان واتنومت، پتہ آئی تم سی زندہ جانور زنگ ژٹن. ات واقعات انسان وچان ات وردات ون بہ انسان وچان انسانس دل سٹھا تنگ گژھان. تو مگر کت تامت مے باسان ونان پرمت لیکھمت مگر تربیتس مز کت تامت کمی. اگر اس امہ انمان تربیت کرو پنن بچن ہز پاو تمن یہ ژٹس، اس ونو تمن سمجھاوک تم یت پٲٹھۍ اَسہِ حقوق چھِ. اگر سٲنِس بچس یا سٲنِس گرِکِس بٲژس کانٛہہ ددار واتنایہِ، کانٛہہ تکلیف واتنایہِ، أسۍ سٲری چھِ وایلنٹ گژھان، أسۍ سٲری چھِ فکر مند گژھان. تِتھے پٲٹھۍ اگر یہِ نٮ۪صبٲنۍ أمِس کانٛہہ پریشٲنی درپیش آسہِ، أمِس کانٛہہ تکلیف واتہِ، اَسہِ پزِ کانشیسلی تمہِ حوالہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ کٲم کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ تٔمِس فٲیدٕ ہٮ۪کو واتنٲیِتھ، راحت ہٮ۪کو واتنٲیِتھ. خیر، راحت کی بات چلی ہے تو راحت سے مجھے یہ ضرور ذہن میں آیا کہ فی الحال گرمیوں سے راحت کی امید کم ہی نظر آ رہی ہے، لیکن ہمارے ننھے منوں کو وہ خبر سن کر ضرور راحت ملی ہوگی جو کل دیر رات گئے ہم تک خبر پہنچی. وہ خبر جو ہے وہ خبر ہے تعطیلات کے حوالے سے. تعطیلات کیا، 2 دن جو ہے سسپینڈ کیا گیا کلاس ورک 5ویں جماعت تک. اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ چونکہ ہیٹ ویو میں لگاتار بڑھوتری دیکھی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے اس آرڈر میں جو کل صوبائی کمشنر کشمیر کی جانب سے آرڈر ایشو کیا گیا، دیر رات گئے ہم تک پہنچا، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف ہے وہ روٹین کے مطابق اپنے سکولز کو جوائن کریں گے، سکولز میں موجود رہیں گے. لیکن جو ننھے منع ہیں، جو طلبہ ہیں 5ویں جماعت تک کے طلبہ ہے، 2 دن انہیں چھٹی ملی ہے، آج کے دن اور کل کے دن. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں اور ایک اہم فیصلہ لیا گیا والدین کی ڈیمانڈ پر کہ جو اوقات کار ہے اسکولوں کے اس میں بھی تبدیلی لائی گئی. اب ارلی اسکول شروع ہوتے ہیں. لیکن اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ لگاتار
ایک پراپر وجل کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہے ننھے مننے ہیں، چھوٹے ہیں، نازک ہیں، تو دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں پر بھی جس قسم کی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے وہ تبدیلی لائی جانی چاہیے. حالانکہ آج کا جب ہم اخبارات پر نظر ڈالتے ہیں، ہمارا ایک اردو اخبار لکھتا ہے کہ 58 سال بعد درجہ حرارت نفسیاتی حد چھو گیا. سری نگر میں پارا 36.2، 1946 کے بعد جولائی میں چوتھا بلند ترین درجہ حرارت ریکارڈ. اور اسی طرح پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ جو ہے درجہ حرارت کے حوالے سے اس کے اعداد و شمار بھی شائع ہوئے ہیں. 10 جولائی 1946 کو 38.3 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح 5 جولائی 1953 کو 37.7 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا. 9 جولائی 1999 کو 37 ڈگری سیلسیس، اور اسی طرح 19 جولائی 1997 کو 36.6 اور 24 جولائی 1967 کو 36.4 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے. تو کل ملا کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ درجہ حرارت میں جو لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں. جس طرح ہم ابھی ٹائیگر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ ہاں ایگزیکٹلی ان کے گھروں کو جب ہم نے نقصان پہنچایا، جہاں پر ان کا رہن سہن ہوتا تھا، جب ہم نے وہاں پر گھسنے کی کوشش کی تو اب وہ انسانی بستیوں میں آنا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح جب ہم ڈیفارسٹیشن کی بات کرتے ہیں، ہم نے ماحول کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، اب ماحول کے تھپیڑے ہمیں برداشت کرنا پڑتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ابھی بھی دیر نہیں ہو گئی ہے. کانشیسلی اگر ہم ایفرٹس اٹھائیں گے، اس حوالے سے اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر جو کچھ ہم سے ہو پاتا ہے ہم کریں گے اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے. آئی ایم شیور کہ اس کشمیر کو ہم دوبارہ پائیں گے جس کشمیر میں فین کا تصور ہی نہیں تھا، جس کشمیر میں ریفریجریٹر کا، فریج کا تصور ہی نہیں تھا. لیکن اس کے لیے مجھے لگتا ہے بہت محنت کرنا ہوگی اور کانشیسلی کچھ ایفرٹس اٹھانے ہوں گے. موسم کے حوالے سے کیا اطلاعات ہے ہمارے پاس؟ جی ناظرین، آپ کو بتانا چاہیں گے آج سری نگر کا موسم خشک رہے گا. وہی اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 32، کم سے کم 23 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 32، کم سے کم 28 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. شاہراہوں کے حوالے سے بھی بتاتے چلے، آج نیشنل ہائی وے 44 پر بڑی گاڑیوں کو ناوی ٹنل سے جموں جانے کی اجازت دی گئی ہے. مغل روڈ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے. مزید اطلاعات کے لیے دیے گئے نمبرات پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی سر شکریہ ام زانکاری باپت. پنن وچن والن ونو زِ اَسہِ آز تُہنٛدِ باپت پرٛٮ۪تھ دۄہٕکۍ پٲٹھۍ موسیقی ہٕنٛز ڈٲلۍ تھٲمٕژ، تہٕ یِم زن موسیقار چھِ یِم چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ مشہوٗر معروٗف شخصیت. کٲشرِ زبٲنۍ منٛز ووت تِمن واریاہ کال گٮ۪وان، تہٕ کٲشرِ زبٲنۍ کٔر یِمو پننہِ انمانہٕ واریاہ خدمت. یِم چھِ اُستاد وحیٖد جیلانی صٲب. مگر اَمہِ سۭتۍ پیٚو مےٚ یہِ تہِ یاد زِ یِم زن دٔچھنہِ طرفہٕ تشریٖف تھٲوِتھ سٲنۍ أزِکۍ مہمان چھِ، یِم چھِ وحیٖد جیلانی صٲبٕنۍ سٲتھی تہِ روٗدمٕتۍ تہٕ پننہِ سفرُک آغاز چھُکھ تِمنٕے سۭتۍ کوٚرمُت. مگر پتہٕ یہِ کینٛژھا اتھ فیٖلڈس منٛز یِمو حٲصِل کوٚر تہٕ یہِ کینٛژھا یِمو اتھ فیٖلڈس دِنٕچ کوٗشش کٔر، سۄ کٲم چھِ تھٮ۪کٕنۍ لایق. تتھ کامہِ متعلق کرو کتھ. فی الحال تھاوو تسلسل برقرار زِ سٲنۍ أزِکۍ مہمان کم چھِ، مگر واریاہ تِم سٲنۍ دوس یِم اتھ شعبس سۭتۍ منسلک، تِمن آسہِ سمجھ آمُت زِ کم چھِ سٲنۍ تِم دوس یِمو آؤٹ آف باکس کینٛہہ کرنٕچ کوٗشش کٔر موسیقی ہٕنٛدِس فیلڈس منٛز. مہمان سے کرو ملاقات، لیکن پروگرام کا آغاز آج بھی کریں گے موسیقی سے، اور آج کا نغمہ استاد وحیٖد جیلانی صاحب کی آواز میں سنتے ہیں. Rasa
तावस बलोचना नार तंदुरस्तई तावस बलोचना नार तंदुरस्तई सुइनार छुन विनती हमार आमताव अशीकनी बहजनस्तई गस्तई वेसिए यूर अंतन उम्रस यम्बरजल सजरस रसई मस्जद कूद गई मस्तान मातई गस्तई वेसी यूर अंतन बुम्बरस यम्बरजल सजरस रसई दीदार यार चोट गचहान दस्तई दीदार यार चोट गचहान दस्तई देवान बमरस दिल छू खस्तई फातिमा यूसुफ छी मंगान तसतई गस्तई वेसी यूर अंतन उम्रस यम्बरजल सजरस रसई गस्तई वेसी यूर अंतन ही नासु दिल बर वुचहन गस्तई वेसी यूर अंतन हो उम्रस यम्बरजल सजरस रसई
ये खूबसूरत नगमा। वेलकम बैक टू आवर व्यूअर्स। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस्ताद उस्ताद ही होता है। जब हम वही जिलानी साहब के नाम के साथ उस्ताद लगाते हैं तो जस्टिफाई भी होता है जब हम इनकी आवाज़ में इस किस्म के खूबसूरत नगमे सुनते हैं। देखिए अंदाज कितना खूबसूरत है, निराला है। हकीकी मानू में मौसीकी की ऐसी सौगात जो सुनने के बाद इंसान पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। और खैर मौसीकी का कह रहे थे कि आपको ये गाना बड़ा पसंद बहुत पसंद है। और मौसीकी का इंसान के जहन पर, इंसान की शख्सियत पर क्या असर है, साइंटिफिकली इसे प्रूव करने के लिए हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं। उनसे हम पूरा ये जानेंगे कि इस किस्म के नगमे अगर मुझे पसंद आते हैं, क्या इसकी कोई खास वजह है, या इस किस्म के नगमे अगर हुमायरा को या किसी और किस्म के नगमे अगर हुमायरा को या किसी और को पसंद आते हैं, कि क्या इसकी कोई खास वजह है कि एक इंसान को एक किस्म के नगमे पसंद आते हैं, दूसरे इंसान को दूसरी टाइप की मौसीकी अच्छी लगती है। तो शायद इसकी भी कोई वजह जरूर होगी, साइंटिफिक रीजन होगा इसका। तो उस पर आएंगे हम जरा देर बाद, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत अब मैं वेट कर रहा था कि अब आप वेलकम बैक बोलेंगी दोबारा, लेकिन आपने नहीं, आप मेरा इंतजार कर रही थी। पहले आपके चक्कर में कहीं गाड़ी ही ना छोड़ती, तो इसलिए मैंने फौरन वेलकम बैक कह दिया। खैर नाज़रीन, अब बारी है कि हम आज की मुलाकात से, आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएं। और आज के मेहमान के हवाले से बड़ा एक्साइटेड हूं, इसलिए अल्फाज में यहाँ वहाँ भी शायद होता हो। इनका जो काम है, ये हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। इनके साथ एक ताल्लुक बहुत पुराना है। दूरदर्शन के इसी स्टूडियो से इन्होंने शुरुआत की है अपने करियर की, एक गुलकार की हैसियत से। लेकिन परसों से मैं इनके कुछ प्रोग्राम देख रहा हूं। हमारे डीडी नेशनल के मॉर्निंग शो में इनका इंटरव्यू हुआ। इसके अलावा पिछले दिनों अखबारात में इनके हवाले से बड़ी खबरें शाया हो गई कि ये बर्लिन जा रहे हैं, वहां एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक पेपर पेश करने जा रहे हैं। तो इनकी इन अचीवमेंट्स को देखते हुए मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे घर का एक फर्द, हमारी फैमिली का एक फर्द, वो इतना ऊंचा मकाम हासिल कर रहा है जिंदगी में। और जिस तरह ये अपने इस काम के साथ जुड़े हैं, जिस सीरियसनेस के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ, शान वगनान, वी रियली फील प्राउड कि हमारे जो दोस्त हैं, जिनकी आवाज़ से आप मानूस हैं, इन्हें आपने टीवी पर देखा होगा। इनकी खूबसूरत आवाज़ की बहुत मदाहीन है, उनमें हमारा भी एक है। ये कह रही थी कि इनकी जो सीडीज़ हैं वो अभी भी हमारे घर में मौजूद हैं। लेकिन मौसीकी के शोबे में कि मौसीकी को किस तरह हम इंसानी ज़िंदगी में क्या अमल दखल है इसका, और किस तरह हम एक इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, उसके मिजाज को, उसके जहन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, म्यूज़िक किस तरह हील कर सकता है, इस मौजू पर ये काम कर रहे हैं, रिसर्च का काम कर रहे हैं। श्रीनगर की क्लस्टर यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं और मुल्क भर में काम कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर शहजाद आसिफ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपने ही घर में। शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। आपकी शख्सियत के हवाले से कई चीज़ें हमारे नाजरीन को मालूम होंगी। आपके सफ़र के बारे में हम चाहेंगे कि तफसीलन आज बात करें। आगाज़ में मुख्तसरन सा एक तारुफ कि आपका जो ताल्लुक़ है कश्मीर के किस इलाके से है, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम आपके मौसीकी के सफ़र के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है और आपकी जो इब्तदाई तालीम है कहाँ पर आपने हासिल की? जी, एक्चुअली हमारा जो ताल्लुक़ है वो सोपोर इलाके से है। सोपोर में हम रहे हैं और उसके बाद हमने शिफ्ट किया श्रीनगर तालीम के सिलसिले में, और बाज़ाब्ता म्यूज़िक में फिर इसकी तालीम हासिल की। बट जहन हमेशा कुछ इधर उधर ढूंढने का कायल था, कुछ अलग करने का, हो रहा है, वो क्यों हो रहा है जी। और जो मैंने एल्बम्स रिकॉर्ड किए थे उस पर भी मेरा पहला एक्सपीरियंस यही रहा कि किस तरीके से जो हमारी जनरेशन है उनको माइल किया जाए कश्मीरी मौसीकी की ओर, और कुछ ऐसे गाने तैयार किए। उस वक्त वो बहुत हिट हो गए और मैं बड़ा ये था कि ये जो गाने हिट हो रहे हैं इसकी वजह क्या है, असल में पीछे से क्या है। तो वो चीज़ एक्सप्लोर करते गए और धीरे धीरे
फिर म्यूजिक रिसर्च में ही पूरा हमने लेकिन जो गुलूकार की हैसियत से आपका सफर चलता रहा, फिर आप एक दूसरी डायरेक्शन ले लेते हैं, ये इतना इजीली तो नहीं हुआ होगा ना? इसके पीछे सही बात है। देखिए, जब एक गुलूकार, मैं अंदर की बात कहूंगा कि एक गुलूकार को ऐसा दिल में ये होता है कि मैं एक बहुत बड़ा गुलूकार बनूं। हाँ, सही है। तो मुझे बहुत सारे जो फैंस होंगे वो मुझे फॉलो करें और मुझे सुने, मुझे देखें, तो ये बड़ा इज्जत, बड़ी प्राउडनेस फील हो जाती है जब इंसान उस स्टेज पे होता है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इंसान के दिल में ये होता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, कुछ और है मेरे लिए। तो अंदर से कुछ इंट्यूशंस ऐसे आ रहे थे कि नहीं, मुझे लगता है मुझे कुछ कहीं और भी जाना है। जी जी, कुछ और भी है, कुछ और भी मंजिल है जो मुझे तलाश रही है, जो मुझे कुछ कह रही है। सो वो मुझे अंदर से ये कुछ कह रही थी कि नहीं, क्यों ना मुझे इसकी तरफ देखना है कि क्या है ये, किस तरीके से है, किस तरीके। एक पॉइंट होता है कि एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पर दूसरा होता है कि इम्पैक्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन द कंट्रीब्यूशन इंसान। बिल्कुल। एक होता है कि इंसान को मौसीकी अच्छी लगती है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है क्यों अच्छी लगती है, और वैरी करती है इंसान टू इंसान, ब्रेन टू ब्रेन, है ना? वही जो बात कर रहा हूं, डिफरेंट म्यूजिक हैव डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट ब्रेन्स, और म्यूजिक भी अलग अलग किस्म का अलग अलग लोगों को पसंद आता है। तो ये इस चीज में फिर अंदर ही अंदर मतलब डूबता गया और सारा कुछ एक्सप्लोर कर दिया। फिर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हमने पब्लिश किए, और नेशनल इंटरनेशनल। तो हाल ही में जो डिमेंशिया पे हमने काम किया, डिमेंशिया के एक शॉर्ट टर्म होती है, मतलब इंसान भूल जाता है। अच्छा, तो किस्म का काम किया गया? बिल्कुल, हाँ। इस पे हमने ट्रायल्स भी किए, हमारा नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस से वहाँ पे। तो क्या हम ये समझे आपके कलाम से कि जो ये भूलने की बीमारी है, मौसीकी से आप कोशिश कर रहे हैं, अभी रिसर्च जारी है कि इस बीमारी को कम किया जाए? बहुत हद तक कम किया जा सकता है, बहुत हद तक। और ये रिसर्च इस वक्त हो रही है और हम इसके साथ जुड़े हैं, और वेरी सून इसका जो आउटपुट है वो दुनिया के सामने आ रहा है। सर, फिर जब आपने शिफ्ट कर दिया इसकी तरफ, रिसर्च की तरफ, आप उस वक्त भी कंटिन्यू कर सकते थे सिंगिंग को। सो व्हाट लीड्स यू टू लेफ्ट सिंगिंग? देखिए, जब इंसान रिसर्च की तरफ माइंड होता है ना, पूरा इंसान डूब जाता है। जैसे अभी अजहर भाई कह रहे थे कि आप पूरे इसमें डूबे हो, तो फिर इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मौसीकी को कंटिन्यू करना। इनफैक्ट आपके बहुत सारे ऐसे नगमे हैं, या आपने एक मूवी भी बनाई थी जो अभी तक रिलीज नहीं की है आपने, तो उसके पीछे भी बताइए क्या रीजन है? कि मैं ये यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, म्यूजिक एज ए एंटरटेनमेंट एक अलग डोमेन है, म्यूजिक एज ए थेरेपी, एज ए मेडिसिनल पार्ट अलग सब्जेक्ट है। सही है। इसमें क्लिनिकल पार्ट है, इसमें आपको समझना, पूरा न्यूरो साइंस समझना पड़ेगा कि न्यूरॉन्स का क्या कनेक्ट है आपकी म्यूजिक के साथ, ठीक है। और वो जो एंटरटेनमेंट, उसमें हम दैट इज कॉल्ड मेकिंग ऑफ म्यूजिक, कंपोजिशन, सॉन्ग्स वगैरह या डांस वगैरह बनाते हैं, अलग है। बट व्हेन इट कम्स टू द इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन, इट इज टोटली साइंटिफिक, इट इज एंटायरली, मतलब आप समझ लीजिए कि साइंटिफिक है, पूरा न्यूरो साइंस आपको समझना पड़ेगा। ये बताइएगा कि एक आर्टिस्ट से ये कम ही एक्सपेक्टेड है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो आर्टिस्ट पढ़े लिखे नहीं होते हैं या ज़हीन नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने फन में बड़े मस्त होकर वो उसी के साथ जुड़ जाते हैं। उन्हें शायद इस किस्म के ख्यालात भी नहीं आते होंगे कि अगर मैं कोई राग छेड़ता हूं, कोई धुन छेड़ता हूं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा आगे वाले बंदे पर। तो लेकिन आपने इतना डीप डाउन जाकर फिर ये सारा किस तरह सोचा, और इसके लिए किस किस्म की तरबियत आपने हासिल? बिल्कुल, देखिए, आपने सुना होगा कि अक्सर हम कहते हैं कि म्यूजिक से इंसान मेस्मराइज हो जाता है, म्यूजिक हैज गॉटन, मतलब एक सूदिंग इफेक्ट, ये फलानी राग में ये है, फलानी राग में ये है, इट हैज गॉटन मेडिसिनल वैल्यू। बट देखिए, जब साइंटिफिक लेवल पे इस चीज को एक्सप्लोर करना होता है, तो यू हैव टू कम विद एविडेंस। आपको ट्रायल्स करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च पब्लिश करनी पड़ेगी, फाइंडिंग्स आपको सामने लाने पड़ेंगे। देखिए जी, इस म्यूजिक का ये इम्पैक्ट है, इस डिजीज पे इम्पैक्ट है, एक पर्टिकुलर म्यूजिक, पर्टिकुलर लूप का एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के साथ कनेक्शन हो सकता है। सो उस चीज को एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो इसमें एक साइंटिफिक डोमेन में जाना पड़ेगा, और सब कुछ उभारना पड़ेगा, तब जाके ये आप इसमें आउटपुट। फाइन। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपके सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन लेवल पर क्या रहे हैं, और साथ साथ ये बताइएगा कि जो आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं या जिस स्ट्रीम में आपने पढ़ा है, क्या उसने आपको फायदा पहुंचाया अपने इस सफर को आगे बढ़ाने में, या कहीं पर आपको कोई अड़चन आई? देखिए, बेसिकली मैं मेडिकल स्टूडेंट था, मेडिकल की साइंस की स्टूडेंट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब मैं बैचलर्स म्यूजिक कर रहा था, तो उस वक्त मेरे दिमाग में यही था कि अगर ये म्यूजिक है, इसका इम्पैक्ट इसके ब्रेन पे पड़ता है,
इसको ये राग अच्छी लगती है, मुझे ये राग अच्छी नहीं लगती, मुझे ये वाली राग अच्छी लगती है। इट मीन्स कि देयर इज सम मैकेनिज्म जो चेंज हो रहा है, जो वेरी हो रहा है ब्रेन टू ब्रेन। तो मैं पहले से ही सोच के रखा, जब मैंने पहला एल्बम निकाला तो उस वक्त यही था मेरे दिमाग में। शायद जो मेरे जानने वाले जो मेरी टीम थी उनको मैंने लिख के दिया था कि दिस विल बी सुपर हिट एल्बम, क्योंकि मैंने ये पहले ही रिसर्च की थी कौन से ब्रेन इसकी तरफ माइल हो जाएंगे। ये अलग ही एक बड़ा एक सब्जेक्ट है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ब्रेन्स होते हैं, कौन कौन से अलग अलग एक्सपर्ट्स जो है आसिम साहब काफी मददगार साबित हो सकते हैं हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी। आप हमारे म्यूजिशियंस को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को मैंने पहले राह दिखा सकते हैं कि किस म्यूजिक का ज्यादा इम्पैक्ट है। इस वक्त दुनिया इसकी तरफ जा रही है। मैं कह रहा हूँ जर्मनी में इस तरह के काम हो रहे हैं, यूएसए में इस तरह के काम हो रहे हैं, इवन चाइना में इस तरह के काम हो रहे हैं, एंड इट हैज गॉट अ वैल्यू, इट हैज गॉट एन इफेक्ट नाउ। तो उस चीज को हमारे इंडिया में बहुत जरूरत है। मतलब मुझे लगता है कि हम देखिए जिनके साथ मुझे मेरा आमना सामना इस वक्त हो रहा है या होता है इस मामले में, इस सब्जेक्ट के मामले में, दोज आर ऑल न्यूरो साइंटिस्ट्स। बट म्यूजिशियन मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई म्यूजिशियन मुझे ऐसा मिले जो कहे कि इस राग में ये है, बट साइंटिफिकली इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, हमने तो सुना है अभी तक कि ऐसा म्यूजिक है, ये म्यूजिक है, इससे ये होता ये होता, बट हमेशा ये देखना पड़ता है कि देखो अक्सर ये बात हम कह रहे हैं कि म्यूजिक हैज गॉट द मेस्मराइजिंग इफेक्ट, बट आई विल बिलीव बिकॉज it is not necessary all times it can mesmerize you, sometimes provoke you as well, ये आपको irritate भी कर सकता है, it can make you anxious। सही है, एक को एंशियस बना सकता है, दूसरे को इट कैन मेक यू स्लीपी। सर चूंकि आपने काफी रिसर्च किया हुआ है म्यूजिक पे, ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि म्यूजिक सुनने से हमारी सेहत अच्छी हो सकती है, और हम ये कैसे डिसाइड करें साइंटिफिकली हमारे लिए कौन सा म्यूजिक सुनना सही रहेगा हमारी सेहत के लिए? यही तो हमारी रिसर्च है, यही हमारी रिसर्च है कि कौन सा म्यूजिक हमारे लिए अच्छा है। देखो आपने ये देखा होगा कि हम हर एक चीज में चूजी है। बिल्कुल, खाने पीने में मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, ये पहनूंगा ये नहीं पहनूंगा, यहाँ जाऊंगा यहाँ नहीं जाऊंगा, बट व्हेन इट कम्स टू द साउंड, दिन भर आप कितना साउंड सुनते हो आपको खुद भी पता नहीं होता है। आप यहाँ जाते हो वहां जाते हो, साउंड सुनते हो, गाड़ियों का शोर होता है, बाकी चीजें होती है, म्यूजिक सुनते हो, गाड़ी में म्यूजिक सुनते हो, शाम को आपको ये नहीं पता होता है कि आपके ब्रेन को क्या हुआ। ठीक है सर, मुझे लगता है कि कनेक्शन है जी, मुझे लगता है कि जो कंटेंट है ना उससे फर्क पड़ता है, जिस तरह का कंटेंट हम सुनते हैं। सपोज वी आर लिसनिंग टू समथिंग विच इज वेरी अब्यूसिव, तो वो हमें प्रोवोक कर सकता है कहीं वो तो कहीं। जो कंटेंट की बात अलग है, दैट इज समथिंग एल्स, बट व्हेन इट कम्स द फ्रीक्वेंसी लेवल, टोन क्या है, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कौन सा म्यूजिक आपके ब्रेन के लिए सही है, उसमें आपके ब्रेन स्पेक्ट्रम, उसकी ब्रेन मैपिंग होती है बाज़ाब्ता। जैसे ये मेरे सामने है, इसकी ब्रेन मैपिंग हो जाएगी, हम उसको बता सकते हैं कि कौन सा लूप आपके लिए अच्छा है, कौन सी मौसीकी आपके लिए सही है, जिससे आप बिल्कुल सही हो सकते हो। ब्रेन मैपिंग का जो आपने जिक्र किया, इससे यह आया होता है कि जिस तरह अगर किसी का बुखार आपको चेक करना है तो आपके पास एक थर्मोमीटर होता है, बिल्कुल, या किसी एक साइंटिफिक टूल होता है, के लिए आपके पास यूएसजी है, सीटी है, क्या दिमाग में क्या कुछ चल रहा है या किस साउंड का आपके जहन पर क्या इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, उसके लिए भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। इस वक्त तो फिलहाल हमारे जो रिसर्च सेंटर जो हमारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी में है, वहाँ हमने EEGs रखे हैं, जो इलेक्ट्रो एंसेफलोग्राफी है। अच्छा। और क्वांटिटेटिव EEG है हमारे पास, न्यूरो मॉड्यूलेटर्स हमें, जो हम ब्रेन के 4 लोब्स हैं, फ्रंटल, ऑसिपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल, इन 4 लोब्स का हम इकट्ठे ये हम देख सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन, न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, उनका जो एक पोटेंशियल एस्टैब्लिश हो जाता है कॉर्टिकल लेवल पे, उस चीज को हम फिलहाल मैप कर सकते हैं। लेकिन जब हमें बाज़ाब्ता लगता है कि नहीं, देयर मस्ट वी हैव टू गो डीप, तो उसके बाद हम उसको FMRI पे लेके जा सकते हैं, वहाँ पे हम उसका टेस्ट लेते हैं। राइट, यानी कि ऐसा इक्विपमेंट है जिससे इन सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है। हम तो इस वक्त ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम ऑब्जर्वेटरी लेवल पे इस वक्त काम कर रहे हैं, उनकी बाज़ाब्ता और हम ब्रेन मैपिंग करते हैं, उसके बाद हम यहीं से उनको डूज एंड डोंट्स देते हैं कि आपको कौन से एनवायरनमेंट में रहना है, कौन सा साउंड आपने सुनना है, कौन नहीं सुनना है, किस किस्म का माहौल आपको अवॉइड करना है। उसी चीज से तो उसका ब्रेन स्पेक्ट्रम जो देखो, आपने देखा होगा कभी कभार मूड स्विंग्स हो जाते हैं। आप सुबह उठते हो, आपको खुद पता ही नहीं होता है कि वाई यू आर हैप्पी, वाई यू आर सैड, यू डोंट नो। हालांकि मौसम अच्छा होता है, माहौल अच्छा होता है, बट स्टिल यू आर सैड, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग ऑन योर फ्रॉम योर इनर साइड।
So it is the game of, it is the mechanism of your brain spectrum. डॉक्टर साहब आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो चुकी है या अप हो चुकी है? तो डॉक्टर साहब आपकी इस दिलचस्प बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही मजा आ रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फिलहाल हमें लेकिन रुकना होगा एक और वक्फे के लिए, और आप जानते हैं कि अगर टीवी पर मुमकिन ना हो तो यूट्यूब आपके फ़ोन में है, यूट्यूब पर भी आप चाहें तो देख सकते हैं हमारा ट्रांसमिशन 24/7 और ख़ासकर गुड मॉर्निंग जी की। फिलहाल रुकेंगे एक वक्फे के लिए। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। એ સાંભળ કર હા, આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે. હા सत्यानाश, भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और नाज़रीन आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब डॉक्टर शहजाद आसिम साहब, हु इज़ अ म्यूजिकोलॉजिस्ट। इनसे और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले पहुंचाते हैं आप तक अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से। नाज़रीन ये खबर, लेह करगिल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स टू रिमेन एफिलिएटेड विद जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जी, अंग्रेजी अखबार के पहले सफ़े की चंद खबरों की सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। मन की बात, पीएम मोदी लॉज कश्मीरी कानी शॉल आर्टिजन्स, क्रेडिट्स देम फॉर पॉपुलराइजिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोडक्ट्स। और ये खबर की सुर्खी, हीट वेव हैवक, चारी शरीफ श्राइन रिवर्बरेट्स विद प्रेयर्स फॉर मी रेन इमिड ब्लिस्टरिंग हीट वेव। और एक सुर्खी इसी अखबार की, सुनिएगा, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स 2-day ब्रेक फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स। जी नाजरीन, मेरे हाथ में है उर्दू रोजनामा, इस पे एक खबर शाया हुई है। ई श्रम रजिस्टर कुंदगान PTS में राशन कार्ड के लिए मुतलका असिस्टेंट डायरेक्टरों और तहसील सप्लाई दफातर से राबिता कायम करे महकमा खुराक। जी, और मेरे पास उर्दू अखबार है और सेहत के हवाले से खबर की सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं। जम्मू कश्मीर में 11% बच्चे मोटापे का शिकार। कश्मीर में मजमूई शरह मर्द ख्वातीन 21%, 40 से 60 साल 15%, 20 से 40 साल 10%, बच्चों में शरह 11%। जी, आखिरी सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, एंड इट इज ओवर 1600 पिलग्रिम्स लीव जम्मू बेस कैंप फॉर अमरनाथ। जी, उर्दू अखबार की एक अहम खबर जिसकी सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं। इंतजामी कौंसिल की लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में मीटिंग, सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन को मंजूरी, आला सलाहियत वाले हुनरमंद और गैर हुनरमंद अफराद के लिए 10,800 मुलाजमतें मर्ज वजूद में लाने का मंसूबा। और एक खबर की सुर्खी, मुल्क में हैंडलूम और खादी मसनूआत की बढ़ती हुई फरोख्त, रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। मोदी, 7 अगस्त को हम कौमी हैंडलूम डे मनाएंगे, 15 अगस्त से कबल हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी। ये थी अखबारात की सुर्खियां। हमारे साथ हैं डॉक्टर शहजाद आसिम, आप म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं, गुलकार तो आप हैं, अभी एक वक्फे के लिए रुके थे, तो हम आपसे अर्ज ज़रूर करना चाहेंगे कि जो आपके मदाहीन अभी भी हैं, जो आपके नगमे सुनते हैं, और इस ताक में इस उम्मीद में हैं कि शहजाद साहब भी जो रिसर्च का काम कर रहे हैं ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन इनकी आवाज़ हमें बहुत पसंद है, तो उस काम के साथ भी जुड़े रहें, बीच बीच में ही सही कोई एल्बम हमारे सामने लाया करें। उन मदाहीन के लिए तिमन पन्न फैनन हिंद खतर अख ज़िलन तुहद कुन युस तुहद सारी खुद मकबूल बात है रोदन तम मज। ये गाना हमने रिकॉर्ड किया था
जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि फिल्म हम बना रहे थे उसके लिए अच्छा ठीक। उसके बाद ही अब्रप्टली मेरा सारा कुछ चेंज हो गया तो उसी की 2 लाइनें भी यहाँ तक ये लिंगे दिल बरो छे फुरसत म्यूलोल न्याय अंजरावनस तेलेच वंतन क्या जिलज म्यून जिंदगी तावनस ये लिंग दिल बरो छे फुरसत म्यूलोल न्याय अंजरावनस तेलेच वंतन क्या जिलज म्यून जिंदगी तावनस ये लिंग दिल बरो छे फुरसत म्यूलोल न्याय खूबसूरत रियाज में मिला वक्त की मगर तो फुर्सत मिला तम बापत की मगर आवाज में बराबर असर बरकरार माशाअल्लाह खुदा दा सलाहियत आसा परवरदिगार सिंद तरफ आसा इनायत कस नफरस का खास सलाहियत। अच्छा तुम ये जानन हालांकि सन व्यूवर वनान दपान कि मंजूर साहब दीन मंसूर साहब दपान कि अगर कह बात बार बार बोलान रिपीट मोडस पे पे सह गसान इंटरेस्ट कम बोरियत महसूस कर पे वन बे कम बात साइंटिफिक रीजन यस एक्चुअली देखो वो ब्रेन से काम करा कि वी आर कनेक्टिंग विद द ब्रेन स्पेक्ट्रम और ये सारा काम ब्रेन स्पेक्ट्रम लेवल पे हो रहा होता है। अच्छा अक्सर इन साथ ब्रेन स्पेक्ट्रम पे फ्रिक्वेंसी आसान अत बात फ्रिक्वेंसी सो ब्रेन स्पेक्ट्रम किस फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज और जब ये रिपीटिशन मोड पे चलता रहता है युस ब्रेन स्पेक्ट्रम पन थ्रेश होल्ड सह वारा डाउन और जब ये डाउन होता है तो मतलब इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कहते हैं वो कम हो जाता है और आप कुछ नया सुनने को चाहते हैं दैट्स वाई ये हो जाता है। इट्स अ साइंटिफिक मोड जो मैं कहना ब्रेन स्पेक्ट्रम ठीक है। ये जो गाना सुन रहा होता है ये अल्फा मोड पे है ठीक है। अब ये अल्फा मोड पे वो धीरे 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 इसका जो है ना वो बीटा मोड पे जा रहा है और जो ये बीटा मोड पे जाएगा ये कुछ नया सुनने को चाहेगा डेफिनेटली। लेकिन अगर पाती बेबोजी इसको अच्छा लगेगा अगर ब्रेक दी। ए.आर. रहमान साहब की मौसीकी के हवाले से आमतौर पर कहा जाता है कि उनकी मौसीकी पहल कम ही अच्छी लगती है लेकिन जब आप वो सुनते रहते हैं तो उसके बाद आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होता है फिर आपको मजा आने लगता है। शायद उनकी मौसीकी के पीछे भी कोई ऐसा ही साइंटिफिक रीजन बिल्कुल क्योंकि हर एक ब्रेन के साथ बहुत ही बड़े जरूरी नहीं है कि म्यूजिक के साथ ये किसी चीज के साथ भी आप कोई ड्रेस पहनी बार बार पहनी आपको लगता जाते हैं फिर या कोई खाना खाए ऐसे क्या वाजान में चल दो है वरना वाजान इज स्पेशल डिश हमारा कल्चरल डिश मन बढ़ जाता है मन पता व्हाट इज दैट उसके खेल जरूर इट इज अ ब्रेन स्पेक्ट्रम चेंज होना ठीक है। ये अंदर से आपको जो आपके सेल्स होते हैं ना वो आपको चाहते हैं कि कुछ नया दे दो। ये आपका ब्रेन स्पेक्ट्रम है जो इस पे काम कर रहा होता है ठीक है। ये वन तो चूंकि इंटरनेशनल सतह पे नजर बाकी मुल्कन मज क्या गसान यम मुल्क कत कर मुल्कस मज रोजान हिंदुस्तान कत कर अत मामलस मज अत शोबस मज रिसर्च के एतबार या बाकी चीजन हंद हवाल कत क्या करने जरूरत ये करू तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बिकॉज बहुत वस बड़ मतलब सोचान समझान कि कत क्या गसान कत क्या सैनिस मुल्कस मज अत वात म्यूजिकस कहीं वी हैव रिच म्यूजिक कल्चर क्लासिकल म्यूजिक हम जानने वाले लोग हैं और बहुत बड़े कलाकार भी हमारे बट व्हेन इट कम्स टू द साइंटिफिक लेवल पे सो चीज प्रूव करने की कोशिश कर यूजर्स इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट हेको कर वेरी राइट अगर वन म्यूजिक सह राहत वातान सह प्रूव कुछ म्यूजिक राहत वातान अम खतर गसान म्यूजिक थेरेपी इंस्टीट्यूट बट तम तथ लेवल पे वन तम वतमित कि अमा तम हेकन सह प्रूव कर तथ खतर ट्रायल्स करने जरूरत तथ खतर क्लिनिकल लेवल क्लिनिकल सेटिंग में देखो मेरा एक ये मोटिव है कि आई वांट टू इम्प्लीमेंट म्यूजिक टेक्नोलॉजी इनटू हेल्थ केयर सिस्टम
یہ ایک میرا موٹیو بھی ہے. اس میں کیا ہے کہ اس طرح کلینکل سیٹنگ کی آئیڈینٹیفائڈ لوپس ہمارے پاس ہے. وہ لوپس جو ہمارے سائیکیٹرک ڈس آرڈرس ہے ان کے لیے بہت کارآمد، فائدہ مند، بہت فائدہ مند ہے. کیازِ ییٚلہِ میوٗزکَس اکھ فٲیدٕ چھُ، میوٗزکَس سۭتۍ راحت واتان چھُ، اَسہِ چھُ یہِ وٕچھُن، یہِ چھُ سَرُن کہِ اما یہِ راحت چھا ییٚمسٕے یوت واتان، ییٚمِس کیازِ نہٕ واتان، ییٚمِس کیازِ نہٕ واتان. سو یہِ چھُ اَسہِ ضروٗری وٕچھُن کہِ اگر پتہٕ چھِ أسۍ آیڈینٹِفائی کران، وی آیڈینٹِفایڈ سچ لوپس اینڈ وی آر انٹروڈیوسنگ دوز لوپس ٹوورڈز دا پرٹیکولر ٹائپ آف ڈس آرڈرس. نا یہ ہمارا ٹرائلز پہ اس وقت سر، چونکہ آپ ریسرچ سینٹر کے فاؤنڈر بھی ہیں، یہ بتائیے گا کہ وہ آپ نے اسٹیبلش کب کیا اور کون کون سے لوکل جو چیلنجز ہیں وہ ایڈریس کیے جاتا ہے وہاں پہ، کس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ وی آر کنیکٹڈ ود نیورو ایکاسٹزم. نیورونز اور وائبریشنز کا کیا جوڑ ہے، ایک نیا سبجیکٹ، اور نئے سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرنا بہت ہی ٹف جاب ہے. یو نو دیٹ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. کیازِ اَسہِ چھُ وٕچھمُت کہ تۄہہِ تہِ کٔرِو سوال میوٗزک کے اعتبار، بٹ اٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو میوزک، اٹ از دا جنرلی اٹ از دا ساؤنڈ. ساؤنڈ میں شور بھی آتا ہے. رین ایک شور ہے، اس کو ہم نوائز کہتے ہیں، ہے نا، یا دریا کا شور ہے، بٹ وہ شور آپ کو میسمرائز کر رہا ہے. دیٹ میکس یو سلیپ. شور کی میں بھی کچھ ہے جو آپ کو میسمرائز کر رہا ہے. اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو میوزک. ٹھیک ہے، تو یہ بہت چیزیں پتہ. ساؤنڈ، اٹ از دا ساؤنڈ، اینڈ دیئر از ون ڈائمینشن دیٹ از میوزک، جس کو آپ کہتے ہیں اٹ از اے یونیفارم ٹائپ آف وائبریشنز جو آپ کو اسموتھلی چل رہی ہے اور آپ کو اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے. اور رہی بات کہ ریسرچ سینٹر کو اسٹیبلش کرنے میں، دیکھو اس چیز کا اسٹیبلشمنٹ ہونا یہاں پہ کرنا ایک بہت بڑا چیلنجنگ جاب تھا، اور میں نے کس طریقے سے کیا یہ میں جانتا ہوں. اور آنے والے وقت میں وہ پورا میں بتا دوں گا جب میں جرمنی سے وہاں سے آؤں گا. اس کے بعد میں پورا بتاؤں گا بہت ساری چیلنجز کا سامنا، کیونکہ مجھے بہت سمجھانا پڑا. ڈاکٹرز کو الگ طریقے سے، ہمارے جو انٹلیکچوئل گروپ ہے ان کو الگ طریقے سے، اور لوکل لیول پہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کو الگ طریقے سے. میولا سے سپورٹ شہزاد صاحب ایکسپیکٹ کرا پنن لوکن نش ایڈمنسٹریشن. دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ ایڈمنسٹریشن کو، دیکھیے ہم اکیڈمک لیول پہ ہمارا جو ریسرچ ہے نا، دیکھیے ایک پروفیسر کو کام ہوتا ہے، اس کو کام ہے پڑھانا. ٹھیک ہے. ریسرچ از اے آپشنل. بٹ میں نے کیا کیا، میں نے ریسرچ سینٹر بنایا، اس میں میں نے پرائمری لیول پہ ریسرچ ہی رکھی. آئی ایم ناٹ اکیڈمک دیا، میرا کوئی آن رول نہیں ہے، بٹ میں نے ریسرچ اسٹیبلشمنٹ کی، ڈیولپ کیا ایک ریسرچ سینٹر، اور ہمارے پاس 10-12 سائنٹسٹ اس کے ساتھ جڑے ہیں جو کام کر رہے ہیں اکٹھے. وہ الگ الگ سبجیکٹوں سے ہے، جیسے کمپیوٹر سائنس ہے، فزکس ہے، سائیکالوجی ہے، میوزک ہے، بہت سارے سبجیکٹ اس میں جڑے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس چیز کو انٹروڈیوس کرنا، جب تک نہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو انٹروڈیوس کریں تب جا کے ہمارا ملک اس کو سمجھے گا. بہت اہم بات یہ بتائیے گا. ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ہی ایسا ہے، بوزان گوڑ پانون کہین، اہم یوتام ہیری کھانا پہ یہ آو کی کت ونان صحیح. اچھا قشر کہاوت بہت تک عرض کران دپان پنو چھن پیغمبر مٲنمٕتۍ، مگر سٹھا اہم کت چیز اگر پن لُکھ ٲسۍ کُنہِ جایہِ کانٛہہ اصل کٲم کران کانٛہہ سۄ کٲم کران یۄس نہٕ تیٖتِس کالس ٲس کرنہٕ آمٕژ کینٛہہ ییٖتِس کالس ٲس کرنہٕ آمٕژ کینٛہہ اَسہِ پزن تِم ایپرِشیٹ کرٕنۍ. حالانکہ اکھ کرٹیکل اینالسس کرٕنۍ چھِ ضروٗری، مگر اگر بہت کچھ سیکھا. صحیح. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دوز ہو ہیز آلویز کرٹیسائزڈ می. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. کچھ سائنٹسٹ اس میں ہیں اور کچھ لوگ بھی ہیں اس میں، بہت شکر گزار، کیونکہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو، میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. ایسی بات دیکھیے حال ہی میں ہیلتھ منسٹری سامنے آ گئی سپورٹ میں، فل سپورٹ میں، اور دے آر پرووائڈنگ می فیلوشپس آلسو. ہم ڈاکٹرز بھیج رہے ہیں، اس پہ پی ایچ ڈیز ہوں گی اب، کیونکہ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن جب انہوں نے ریکاگنائز کیا، ان کی سمجھ میں آیا، تب جا کے ان کو لگا کہ نہیں اس نے اتنا کام کیا. اینڈ وی گاٹ ریسنٹلی ایک ریکاگنیشن ہمیں ملی نیشنل لیول پہ، DSIR ریکاگنیشن. وہ نارتھ انڈیا میں صرف ہمارے ریسرچ سینٹر کو بہت اچھی بات ایک ریسرچ کرنے کے لیے. وہ آر ایکسپیریمنٹل فل. ہم صرف ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، ہمارے پاس جو بھی آتا ہے ریسرچ بیسڈ، ہم اس پہ برین میپنگ کرتے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں اور فائنڈنگ ساتھ میں لاتے ہیں. تو یہ ہمارا روزمرہ کا کام ہوتا ہے یہاں پہ. خیر میوزک کی بات چلی ہے، ساؤنڈز کی بات چلی ہے، آپ کو یہ جان کر اچھا لگے گا عاصم صاحب کی دوردرشن کی کشر چینل سے ایک نئے پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے، یوتھ میوزک بینڈ، اور اس میں ہم اپنے نوجوانوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہنر کا، اپنے فن کا اظہار کرے. اس حوالے سے ایک پرومو ہم ذرا دیر بعد دیکھیں گے، لیکن اس سے قبل ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں،
और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। डॉक्टर शहजाद आसिम से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आई एम श्योर हमारा के जहन में बहुत सारे सवालात होंगे, वो सवालात आपको पूछने का मौका मिलेगा, अभी हमारे पास कुछ वक्त है। लेकिन एक अहम सवाल वो ये कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये एतकाद है कि जो चीज़ हराम है वो चीज़ हराम है। मौसीकी हम सुनते हैं, फिर हम उसके लिए कई जस्टिफिकेशंस भी देते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि म्यूज़िक के ज़रिए कई जहनी अमराज का इलाज करते हैं, कई परेशानियों का इजाला होता है, दूसरी तरफ से हम यू आर ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, इस चीज़ को अगर हराम करार दिया गया है तो आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे? देखिए, इट्स ए रिलीजियस पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। तो ये बात मुझे रोज़ बरोज़ सुननी पड़ती है और इसका जवाब इस प्रोग्राम की वसात से अगर उनको मिले तो बहुत अच्छी बात है। वो ये है कि सही कथ ये मज़हब म्यूज़िक हराम, ये बात सही है। बट मैंने पहले ही कहा कि इट्स नॉट कन्फाइंड टू म्यूजिक, इट्स साउंड्स। हम साउंड पे काम कर रहे हैं। और रही बात म्यूजिक की, म्यूजिक में भी ऐसा है कि वी हैव आइडेंटिफाइड सच लूप्स। देखिए, अगर आप अजान सुनेंगे तो अजान में भी एक लूप है, रिदमिक चीज, वो भी एक असर रखता है, वो भी एक समझिए एक टोन ही है, या रिसाइटेशन ऑफ कुरान। मैं स्पेशली अपने ही मजहब की बात करूंगा, बाकी मजहबों में तो ये ओपन है, बट वो भी करते हैं, कीर्तन है, भजन है, बाकी चीजें करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अवर दिस रिलीजन, लेकिन उसमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं होता। नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं हो सकता उस पर, बिकॉज वो अलग है। उस पर जब हम उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जब हाइब्रिडाइजेशन मोड पे चलता है तो दिमाग का ये जरूरी बात है कि आप इरिटेट हो सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये जो है अजान में भी है, रिसाइटेशन ऑफ कुरान में भी है, या आप नात पढ़ते हैं उसमें भी आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, वो ज़्यादा असर रखती है। इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने जब ये बनाया उनको पता है, क्योंकि इंसान को जो इल्म है वो एक हद तक है, लेकिन बनाने जो हमारा खालिक है उसको पता है कि ये मैंने बंद क्यों किया, व्हाई इट इज प्रोहिबिटेड। बट इसके जो असल में जो इसके जो असरात हैं, असल में जो इसका असर रखता है वो कोई जानने वाला ही जान सकता है। जब आप उस उस लेवल तक पहुंच सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है। बट कॉमन लेवल पे इस चीज को बंद रखना मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि हम कहते हैं ना, जब मैं इस वक्त साइंटिफिकली कह रहा हूं कि हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे लूप्स। आप जो साउंड सुनते हो दिन भर, आपका जो साइकेट्रिक लेवल है वो डिसऑर्डर में चला जाता है। इट मीन्स कि आपको रुकना पड़ेगा, आपको नेट लगाना पड़ेगा। सो ये समझ लीजिए कि एक तरीके से नेट लगा हुआ है। बहुत अहम इंकशाफ। जी जी। तो इस हवाले से आपका कलाम मौजूद रहे, आपने बहुत ही अहम बात कही, और इस ताल्लुक से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आपने खालिक की बात की, कादिर की बात करें, हमारे बनाने वाले को ही मालूम है कि कौन कौन से राज छुपे हैं जी। तो लेकिन मौसीकी के जहां पर आपको मेडिसिनल वैल्यूज इसके पता चलते हैं, तो एक इंसान को अगर इससे राहत मिलती है, उसकी सेहत बेहतर बनती है, तो मुझे लगता है वहां पर कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, इट्स साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं थोड़ा टर्न करूंगा। जब आप ब्रेन को एक लेते हैं ना, ब्रेन में जरूरी एक स्टोरेज होती है, मेमोरी स्टोरेज, जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। उस हिप्पोकैम्पस में ऑलरेडी जब से आपका कॉग्निटिव अप्रोच, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट हुई होती है, उसमें सारा कुछ छुपा हुआ होता है। जो आपके हिप्पोकैम्पस में छुपा हुआ होता है, जाहिर सी बात है, जो आपका अप्लाइड मोड पे जो इंटरेक्शन ऑफ साउंड हो जाएगा वो उसी छुपी हुई स्टोरेज के साथ ही सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई हिंदू है, हिंदू के हिप्पोकैम्पस में जाहिर सी बात है उसके मजहब का ही छुपा होगा, दैट इज वाई कि उसको वही चीज मिलेगी उसमें जो उसके हिप्पोकैम्पस में होगी। तो हमारे में वही होगी जो हमारे हिप्पोकैम्पस में छुपी वो स्टोरी, और उसका फिर स्टिमुलेट होना ब्रेन स्पेक्ट्रम पे और उसकी जो सिंक्रोनाइज हो जानी, तो वही फिर हमें ठीक लगता है। तो एक जो मुस्लिम होगा, अगर हम उसको सूरह अर-रहमान सुनाएंगे या कोई और सूरह सुनाएंगे, यासीन शरीफ या कोई और सूरह उसको सुनाएंगे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई सूरत उसको साथ इंटरेक्ट हो ही जाएगी, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी स्टोर इन हिज हिप्पोकैम्पस। दैट इज वाई कि ये चीजें हो जाती है। अक्सर आपने देखा दुनिया में अक्सर इस वक्त मैसेज आती है, मेरे को मैसेज आती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, सो डॉक्टर साहब हमें बताइए इसका जवाब क्या है। इसका जवाब यही है साइंटिफिकली। अब हिंदू को ले लीजिए या सिख हमारे क्रिश्चियन को, उनका देखिए, वो अपने गिरजाघर में जाएगा, वो अपना वो सुनेगा, उसको वो अच्छा लगता है, so why? या कीर्तन वाले को कीर्तन अच्छा लगता है, वाई? भजन वाले को भजन अच्छा लगता है, वाई?
है ना, यही भी तो क्वेश्चंस है ना. सो इट इज द ओनली बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन हिज ब्रेन, इन हिज हिपोकैम्पल एरिया, और वहां पे उसका फिर सिंक्रोनाइज होना इसके साथ, यही आता है. जी सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि म्यूजिक का क्या रोल है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद मेंटल डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन वगैरह, और हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी वो फेस कर रहे हैं. जी. तो क्या आपको लगता है कि म्यूजिक लीड्स टू स्लीप डिसऑर्डर्स? बहुत हद तक हमारी रिसर्च भी चल रही है, और बहुत सारे लूप्स हमने आइडेंटिफाई ऑलरेडी किए हैं, और आने वाले टाइम में हम उन लूप्स को अब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं with the collaboration with the Institute of Human Behavior and Allied Science. उस पर हम यही काम कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने इंसोम्निया की बात की कि नींद का कम आना या ज्यादा आना, ठीक है, ये बहुत इस वक्त हो रहा है. या जो इस वक्त साइकेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं रोजमर्रा, इस वक्त हमारी जो सोसाइटी है इसमें बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं. एक उभार जिसको हम एक उरूज पर है इस वक्त. बिल्कुल. तो ये इस वजह से है क्योंकि हमारा पहले ही हमने कहा कि देयर इज एन इथिक्स, एक इथिक्स है इसमें, सुनने का भी एक इथिक्स है. वो इथिक्स हमें अभी पता ही नहीं. हमें उस इथिक्स को सामने लाना पड़ेगा कि हमें कौन सा साउंड सुनना है, कौन नहीं सुनना है. Okay. जब तक ना आप इस चीज पे देखिए, अगर आप एक ही ड्रेस रोज लगाओगे, जाहिर सी बात है आप इरिटेट हो जाओगे. सो व्हाई यू बिकम इरिटेट? वो भी तो ड्रेस ही है. बिकॉज आपका ब्रेन स्पेक्ट्रम आपको स्टिमुलेट करेगा कि गो फॉर चेंज नाउ, बिल्कुल कुछ नया दे दो, खाने में भी, पहनने में भी, किसी चीज में भी. तो यही आप रूल लागू कीजिए साउंड पे भी. तो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक, ठीक है, ये आपको सुनना पड़ेगा, आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कौन सा म्यूजिक मेरे लिए अच्छा है. जैसे मैं हूं, मैं कभी वो म्यूजिक कभी नहीं सुनूंगा जो मुझे अच्छा ना लगे, मैं कभी नहीं सुनूंगा. ठीक है, अजहर भाई को ठीक लगे वो इसका डोमेन है, आपको ठीक लगे वो आपका डोमेन है. कोई अपने मूड के हिसाब से. अभी मैंने 2 लाइनें गाई, मैं ये नहीं कहूँगा पूरे कश्मीर को अच्छा लगेगा. हो सकता है कोई बोलेगा ठीक है, क्यों ठीक है, क्या कोई बोलेगा अरे यार क्या गाना गाया. सो इट डिपेंड्स अपॉन द ब्रेन स्पेक्ट्रम. एग्जैक्टली. साइकेट्री का अलग डोमेन है, न्यूरोलॉजी का अलग डोमेन है. हमारा डोमेन जो है वो ब्रेन स्पेक्ट्रम पे है, डेल्टा से लेके गामा तक. इट्स डेल्टा, थीटा एंड अल्फा एंड बीटा एंड देन गामा. ये अलग अलग कैटेगरीज है फ्रीक्वेंसी के. आपकी इन बातों से मुझे ये अंदाजा होता है शिद्दत के साथ कि जो आज के दौर की मौसीकी है, तेज तरार मौसीकी है, और उसके बाद जो हमारे आज के नौजवानों का टेम्परामेंट है, कहीं ना कहीं उस मौसीकी का असर बराह रास्त उनके टेम्परामेंट पर है. लेकिन आज से 20 साल 30 साल पहले की जो मौसीकी थी, बहुत ही मध्यम मौसीकी, और लोगों का मिजाज भी कुछ उसी किस्म का होता था. एक बड़ा इम्पैक्ट है इसका. डेफिनेटली इट हैज गॉट कनेक्शन विद दिस. देखिए हम इसको कहते हैं प्लकिंग. जी, इसको कहते हैं प्लकिंग. दिस इज कॉल्ड द प्लकिंग. जो आज का म्यूजिक है इट्स मोर रिदमिक, ठीक है, इट्स मोर उछल उनको मतलब जो हमारे नौजवान है वो वही सुनना पसंद करते हैं, बिकॉज उनके अंदर भी वही ब्रेन स्पेक्ट्रम ही बने हैं. ठीक है, तो उनके साथ वही होगा, वही सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी, तो वो उसी को सुनना पसंद करेंगे. लेकिन जब आप प्लकिंग मोड पे हो, प्लकिंग मोड पे इसका मतलब ये होगा साइंटिफिकली कि ये जो है इसका पेशेंस लेवल कम है. एग्जैक्टली ट्रू. ठीक है, और इसका जो मतलब मूड स्विंग्स है वो इसकी जो रेट है वो बहुत फास्ट होती है. ठीक है, और ये इनके पास कंसिस्टेंसी नहीं होगी. ये मैं आपको साइंटिफिकली कुछ एक ओपन कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी उनके पास ये नहीं होगी. जी, और नींद भी उनको कम. यूथ का जिक्र आपने छेड़ा, और यूथ को जो मौसीकी पसंद आती है सुनने में और गाने में, कुछ उसी की झलक हम दिखा रहे हैं अपने इस प्रोमो में. ये जो प्रोग्राम हमने नया शुरू किया है, यूथ म्यूजिक बैंड, आइए देखते हैं. हम आज आपको एक ऐसे रंगीन सफर पे ले जाने का इरादा रखते हैं जहां हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन टैलेंटेड बैंड्स को देखने और सुनने का मौका मिलेगा.
दिल जानान बलम अद बलम दिल बेमारो सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना इस्तकबाल आपका एक दफ़ा फिर गुड मॉर्निंग जेएन के प्रोग्राम के आज के शुमारे में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शहजादा आसिम से जो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कई अहम चीज़ों पर आपने रोशनी डाली। हमने जो सुना है अपने मौलिज दोस्तों से, कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है इंसान के जिस्म में जो आपके मूड को एलिवेट करने में या आपको खुश रखने में एक अहम रोल निभाता है। साउंड्स का क्या वाकई असर है, इफेक्ट है कॉर्टिसोल को बढ़ाने में, उसको एक मिकदार में रखने में? देखिए, जहाँ तक कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, ये इसको हम सैड हार्मोन अक्सर कहते हैं, क्योंकि अक्सर ये तभी होता है कॉर्टिसोल लेवल की अब एनहांस हो जाती है तो तभी इंसान मायूस हो जाता है, मतलब डिप्रेशन। कॉर्टिसोल बढ़ने से मायूस होता है? जी जी। अच्छा, साइंटिफिक ये एज पर रिसर्च में कह रहा हूँ। बट ये कॉर्टिसोल हमारे ब्रेन में नहीं होता है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो गट से आती है, डाइजेशन से। अच्छा, ओके, तो वहाँ से आती है। राइट। तो अब ये इस कॉर्टिसोल लेवल को हम किस तरीके से मतलब बैलेंस कर सकेंगे, वो भी हमारे पास लूप्स हैं। देखिए, मैंने कहा कि ब्रेन स्पेक्ट्रम ही सारे बॉडी को कंट्रोल करता है। यू हैव द 50 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। आप 50 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने हो और उन सेल्स की अपनी एक इंटर एंड इंट्रा कम्युनिकेशन, उस इंटर एंड इंट्रा कम्युनिकेशन को आपका एक फोकल पॉइंट है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, दैट इज योर ब्रेन स्पेक्ट्रम। ओके। सो वो जो ब्रेन स्पेक्ट्रम से कम्युनिकेशन आएगी वही पूरी बॉडी आपको ये फॉलो करेगी, समझ गए? तो इस ब्रेन स्पेक्ट्रम में जब तक ना आप कंट्रोल करोगे उस ब्रेन, वही आपको पूरी बॉडी को फिर रिलैक्स फील करवाएगा और सारे हार्मोन्स को आपको बैलेंस में रखेगा। वंडरफुल। काश वक्त होता, आपके पास बहुत कुछ है जो हम जानना चाहते थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको आगे और दावत देंगे। जाते जाते अपने मदाहीन के लिए वो नगमा जो बहुत मकबूल है, लोला बरियो, इसकी एक दो लाइन जस्ट जाते जाते। ये बहुत मकबूल हुआ था। हाँ। चलो आपने अब इसरार किया। आपको तो कहते हैं ना म्यूजिक का इफेक्ट है, तो इससे लोगों का मूड एलिवेट हो जाएगा। लोला बरियो बरियो दिल बरो, लोला बरियो बरियो दिल बरो, मूजा जरियो जरियो दिल बरो, लोला बरियो बरियो दिल बरो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बहुत शुक्रिया। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्ग और खवातीन का एहतराम और इकराम दी। मैं तो हुमैरा इजाजत भी तो ही थे, खुदा